What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 30th of March, and today was Nifty's monthly expiry because tomorrow is a market holiday. And guess what? The bloodbath in the market continues, and जो लास्ट वीक में 22,500 पे मार्केट्स ने लो मारा था, आज वो लो डिसाइसिवली टूट चुका है एंड द मार्केट्स हैव गिवन अ क्लोज समवेयर अराउंड 22,300 लेवल्स. सो मार्केट्स ने डे लो के आसपास क्लोज दे चुका है एंड टुमारो इज अ मार्केट हॉलीडे फॉर द इंडियन मार्केट्स व्हाइल ऑल अदर ग्लोबल मार्केट्स आर ओपन. सो अनलेस वी गेट सम सॉर्ट ऑफ अ रियली गुड पॉजिटिव न्यूज from the geopolitical front, we might be seeing another gap down open on Wednesday. So Nifty has almost corrected 17% from its all-time highs. Bank Nifty has corrected more than 20%. IT has corrected almost 35 to 40%. And if market falls another 2 to 3%, we will be officially trading in bear market territory. On one hand, Nifty is falling, and on the other hand, even the INR is falling against the USD. So in dollar terms, Nifty is hugely underperforming all other global benchmark indices, and it's going to be a tough time for all the long-term investors and the bulls out here. So to talk about today's expiry, the markets yet again opened a decent amount of gap down, almost 22,500 के आसपास markets ने gap down दिखाया, and the straddles in fact held. जो हम overnight crush देख रहे थे over the last couple of weeks, आज वो overnight crush इतना ज़्यादा pronounced नहीं था. The straddle which had closed at 400 on Friday close, it opened at somewhere around 230, and as the market started to slide below 22,500, the straddle in fact spiked. Of course, the premiums were good, but at the same time, the markets were also giving some sort of a monstrous moves in both the directions. Markets 22,500 के आसपास open हुआ, then we hit almost 22,700 levels, and वहाँ से वापस 22,450 के आसपास आया, and from there we saw a very brisk 170 point का up move, just like how we saw on the Sensex expiry. And from there, the markets again reversed, 22,450 levels को तोड़ा, and then towards the end of the day, the markets kept tanking and almost breached 22,300 levels. So currently, the VIX is trading around 28, and जो April month का जो straddle 1 month back, which was trading at 1,000 rupees, now it is trading at almost 1,500 after accounting for 1 month of time decay. So there has been a decent spike in the long-term options, and things are looking very interesting from a trading point of view, but things are looking pretty bleak from investing point of view because everybody's portfolio is bleeding. But it is during these times that the investors get great opportunities to actually buy the companies at dirt cheap valuations. So let's get to the terminal and let's see Wednesday के दिन जब हम open होंगे उस टाइम पे हमारा trade plan क्या होना चाहिए. So the daily chart is definitely not looking good for the bulls, and it looks like we are in some sort of a free fall, but yeah, 26,350 से लेके 22,350 तक ऑलमोस्ट एक 4,000 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिला है. 16% वी आर डाउन फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, अनदर 4% एंड विल बी ऑफिशियली ट्रेडिंग इन द बेयर मार्केट टेरिटरी. एंड of course, we are seeing a decent amount of down move, but at the same time, we are getting these monstrous pullbacks. Almost 1,000 points का pullbacks आ रहा है, which makes it very hard for the trend followers to actually hold on to their positions. And मैं 2 बार इस चीज़ों के बारे में बात किया है कि like during this up move, the VIX actually cooled off. जो 25 के आसपास VIX चल रहा था, वो वापस 17 के आसपास आ गया था. But when ये गैप डाउन के साथ ये जो लो टूट गया, so from here 22,500 से लेके सिमिलर काइंड ऑफ 1,000 पॉइंट यहाँ पे पुलबैक आया, तब 27 से लेके सिर्फ 24.5 तक ही VIX कूल ऑफ हुआ. तो at this point we were of the opinion that this is just a pullback and the selling is not yet over and bottom अभी तक बना नहीं है. And now that 22,500 is clearly taken out, the next logical support is somewhere around 21,900 level. And यहाँ पे क्या मार्केट रुकेगा या मार्केट इसको भी तोड़ेगा, it completely depends on how the geopolitical situation that is running that kind of plays out. All right, lower time frame पे बात करेंगे तो yeah, we already talked about this. Expiry was volatile in spite of decently high premiums. आप देख सकते हैं कि starting में ही almost 480 से लेके 700 तक almost एक 250 point का up move दिखाया, and then another 250 point का down move दिखाया, and this is what the spike that I was talking about. ये जो spike आया है, so it was brutal. In fact, this shot up the calls by almost 5 times. जो 30-40 rupees पे जो calls trade कर रहे थे, 2 OTM 3 OTM का calls, they almost went 150 rupees तक, and immediately there was a cool off, and then the day low got breached, and from there even at 3 o'clock there was a sharp down move where, like, you know, this was almost a 80 point candle, and then there was a subsequent recovery. So
nonetheless, it was not an easy day at all, considering the fact that today was monthly expiry as well. So there was a lot of स्मॉल टाइम फ्रेम चॉप्स जो 1 मिनट कैंडल पे आप देख सकते हैं कि लाइक प्रीमियम सडनली 40 रुपये का जो प्रीमियम था इमीडिएटली 60 जाता था एंड वापस आ जाता था. एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यूज टू हैपन इन बोथ कॉल्स एंड पुट्स मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द डे. सो टुडेज एक्सपायरी इन नो means was an easy expiry, but yeah, I ended decently. 0.4% के आसपास मैंने green close किया है, and my month of March is again back in green. Fortunately मैंने green पे close किया है, so कोई भी महीना ऐसे negative में close नहीं हुआ है. And we'll talk about how the entire financial year ended, and live video में मैं सारंग और निखिल आने वाले हैं, and we're going to be talking about how the entire year went and what would be our plan for the next financial year. So to talk about Wednesday, when we're going to open, it's going to be the Sensex 1DT, and as you can see, the markets are pricing in enormous amount of mammoth premiums for the overnight uncertainty, because every time our markets are closed, when the markets are going to open on the next day, we are opening with a huge gap either on the upside or on the downside, and the markets are kind of factoring the similar kind of a move. आप देख सकते हैं कि 2 o'clock के बाद 3 o'clock के बाद the straddle in fact spiked back almost 100 points. Sensex में straddle spike देखने को मिला है, and 1500 के आसपास straddle close दिया है, and this should be opening somewhere around 1300 in my fair estimate. 1300 1200 के आसपास ओपन हो जानी चाहिए if at all the market opens with a gap up or a flat opening. But अगर मार्केट फिर से गैप डाउन खुलता है, let's say the war situation escalates in the next 36 hours, and if we start to open at somewhere around 20,000 levels on Nifty, then expect this straddle premiums to hold and not give any kind of overnight crush. So Wednesday के दिन of course there is absolutely no point in which one should be trading delta neutral, because markets ने जितना implied volatility है उसके हिसाब से ही realized moves दे रहा है. So there is no point in trading delta neutral trades, especially on a non-zero DT where you don't have an approximation of where this particular straddle might be ending. So डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर है, एंड जो अगर हमको प्राइस एक्शन बेस्ड अगर ट्रेड्स लेना है, अगेन ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो दिस विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ लोकल मैक्सिमा, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लो है इट विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ लोकल मिनिमा, प्रोवाइडेड दैट वी गैप अप समवेयर अराउंड 70 to 500 लेवल्स. अगर 70 to 500 लेवल्स के आसपास मार्केट आता है तो देन वी विल बी ट्राइंग टू फेड द मूव्स एट बोथ द डेज हाई एंड डेज लो. अगर यहाँ पे 70 to 500 या 70 to 400 मार्केट्स इस रेंज के बीच में ओपन होके यहाँ पे आएगा तो देन विल ट्राई टू फेड दिस मूव, एंड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड्स ले सकते हैं. बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके 10 o'clock के पहले ये लो को तोड़ देता है, देन वी शुड बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. शॉर्ट ट्रेड्स हमको लेना पड़ेगा विद दिस पर्टिकुलर हाई एज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस. ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड होने वाला है, बट दिस इज हाउ द मार्केट्स आर फॉर्मिंग द प्राइस एक्शन. तो हम लोग स्टॉप लॉस को मार्केट के हिसाब से रखना पड़ेगा. सो उसके हिसाब से हमारा जो क्वांटिटी है, हमारा जो साइजिंग है, उसको हम लोग डिसाइड करना पड़ेगा. सो अगर मार्केट 930 से पहले या 945 से पहले इस लो को तोड़ता है, देन वी शुड बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. एंड व्हाट इफ मार्केट ओपन्स विद अ बिग गैप डाउन? तो अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, स्पेशली इफ निफ्टी ओपन समवेयर अराउंड 22,000 लेवल्स, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो आके इस लेवल पे मार्केट्स को बाई कर सकता है. तो देन वेट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, एंड फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का जो ब्रेकआउट होता है उस ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, ना कि ब्रेक डाउन को. अगर 22,000 लेवल्स के आसपास मार्केट्स ओपन होके फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का लो को भी अगर तोड़ देता है, देन उस दिन को हम लोग जाने देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो जितना बेयर्स को चाहिए होता है उतना ऑलरेडी गैप डाउन के तौर पे ऑलरेडी रियलाइज हो चुका रहता है. इसके बाद आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उतना फेवरेबल नहीं होता है. तो अगर मार्केट 22,000 या 21,900 से लेके 22,100 के बीच में कहीं पे भी खुलता है एंड फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल फॉर्म होता है, उसका हाई ब्रेकआउट पे हम लोग लॉन्ग ट्रेड जाएंगे एंड शॉर्ट ट्रेड नहीं जाएंगे, बिकॉज 22,000 इज अ डिसेंट सपोर्ट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस टू कम एंड पंप इन द मार्केट्स वहां पे. तो द रिस्क रिवॉर्ड विल बी गुड फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स, एंड हम लोग उसको 200-300 पॉइंट्स तक भी हम लोग इस चीज़ को राइड कर सकते हैं. एंड फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो लो अगर ब्रीच होता है उस दिन हम लोग जाने
जाने देंगे, बिकॉज मार्केट यहाँ पे चॉप करने के लिए 21,800 21,850 के आसपास जाएगा एंड वहाँ से सब लोगों को ट्रैप करके एक शार्प अप मूव दे सकता है व्हेन द इंस्टीट्यूशन स्टार्ट बाइंग, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस वर्क बेस्ड ऑन द अवेलेबल लिक्विडिटी। तो उनको लिक्विडिटी चाहिए तो पहले वो लोग मार्केट्स को एक तरफ लेके जाते हैं एंड जहाँ पे सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड सब लोग बेरिश बन जाता है, वहाँ से मार्केट्स को पंप किया जाता है। दैट्स हाउ द मार्केट्स वर्क, दैट्स हाउ द ऑपरेटर्स वर्क। सो मार्केट 22,000 के आसपास अगर खुलता है, बिकॉज आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ निफ्टी बिकॉज दैट इज व्हाट एवरीबडी इज फॉलोइंग एंड सिंस सेंसेक्स एंड निफ्टी वर्क ऑन द सिमिलर लाइंस, जो भी चीज़ मैं सेंसेक्स निफ्टी में बात कर रहा हूँ सेम चीज़ सेंसेक्स को भी अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो ब्रेकआउट है उसको ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन को अवॉइड करना है इफ एट ऑल वी ओपन विद अ बिग गैप डाउन। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ब्रेकडाउन को कब ट्रेड करना है? इफ वी ओपन विद अ बिग गैप अप। इमेजिन कुछ बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, सम सॉर्ट ऑफ पीस टॉक्स हो गया, कुछ सीज फायर का कुछ अनाउंसमेंट हो गया, देन देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट वी माइट बी ओपनिंग विद अ ह्यूज गैप अप। नाउ बड़ा गैप अप खुलता है तो सिमिलर काइंड ऑफ अ ट्रेड फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल फॉर्म होने दीजिए एंड यहाँ पे ओनली शॉर्ट ट्रेड लेना है। अगर 5 मिनट का लो टूट जाता है तो 5 मिनट का हाई पे स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट ट्रेड लेना है एंड रिस्क रिवॉर्ड जो लॉन्ग ट्रेड पे काफ़ी घटिया रह जाता है, तो आई विल नॉट बी गोइंग लॉन्ग इफ एट ऑल द मार्केट ब्रेक्स द हाई ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल आफ्टर अ बिग गैप अप और इफ इट ब्रेक्स द फर्स्ट 5 मिनट लो ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल आफ्टर अ बिग गैप डाउन। तो दोनों चीज़ पे हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड्स को प्लान करेंगे, बिकॉज एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन के बाद ना ट्रेंड फॉलो करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक बैठता नहीं है। ऑलराइट, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी आपके लिए कैसा रहा एंड आई विल सी यू आफ्टर मार्केट्स एक्शन ऑन वेडनेसडे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.